Everyone can hear me? Yes, sir. All right, thank you. लेकिन अब क्या हो रहा है? If I want to find its expectation, then what is the principle? Principle is that you take the random variable, multiply with its probability, and then sum over all the values of the random variable. This is a simple rule. So I have this value 1 minus lambda h lambda, but for this probability value, I know that the count of this term was 0. All right. So when my random, now this is total my random variable, this is a function of the random. So when my random variable is 0, e minus u0 is 1, and the probability of occurrence of 0 is 1 minus lambda h plus oh. So ye aa gaya. Then when my count is 1, random variable value is 1. So value will be e minus u into 1, e minus u times the probability of getting 1 times this. Similarly, this one, how you will get? When the count is greater than or equal to 2, so you can put this at 2 or whatever greater than 2, but the result is OH. So anything multiplied with OH, it will always become OH because it is tending towards 0. So this is your expectation of this function. Okay? सबको समझ आ गया? Now I just substitute this value in this equation. So I will get g of t multiplied by totally this thing, multiplied by this total this thing. So I can, this I open, this becomes gt, this becomes gt into this lambda, this thing. All right. So gt, I take it here, this becomes gt plus minus gt. And this becomes gt lambda h of h. So I divide this by h, I divide all the sides by h. This is h cancels, this OH over H, and this becomes GT plus H minus G over H. But we know as H is tending towards 0, we let H tend towards 0. This means this interval is tending towards 0, and this is the derivative or the definition of the derivative of G of t. This becomes derivative of G of t. And as H is tending towards 0, so you can very well see that this total factor will tend towards 0. So you will always have only will this will remain. समझ आ गया आपको कैसे 0 को कर रहा है OH 0 को जा रहा है? सर ये लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव लिया है, हाँ लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव लिया, और राइट साइड वो OH ओवर H वो तो प्रॉपर्टी है कि टेंड्स टुवर्ड्स 0. हाँ वो 0 हो गया, सिर्फ वो रहेगी. हाँ. ठीक है सर. सो ये देखा था कि हमें कहते हैं F कब होता है OH? जब F of H ओवर H टेंड टुवर्ड्स 0 करेगा. जी सर. ठीक है ना? ये प्रॉपर्टी लगी सर. हाँ वो मतलब OFH की ये प्रॉपर्टी है. अब यहाँ पे देखिए ना OFH ओवर H है, मतलब OH ओवर H है. तो इसका मतलब एक्चुअली हो गया कि O of H ओवर H का मतलब हो गया F of H ओवर H स्क्वायर हो गया. ठीक है ना? लेकिन सर ये H से कह दो, तो दूसरी प्रॉपर्टी है. क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ. सो एफ ऑफ एच और एच को ज़ीरो करने की यही वजह होगी कि एफ ऑफ एच जो है वो जल्दी ज़ीरो जाए एज़ कम्पेयर टू एच. ठीक हो गया? तो यहाँ पे भी जब हमने इसको कहा कि एफ एस इज़ ओ एफ एच, सो
ये उसी सूरत में ज़ीरो हो रहा है जब ऊपर वाला ज़्यादा जल्दी में ज़ीरो हो रहा है, ठीक है ना। सो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमारे पास ओ ऑफ एच ओवर एच है, तो ओ ऑफ एच है ही एफ ऑफ एच ओवर एच है, ठीक हो गया ना। सो इसका मतलब होगा कि जो हमारा ऊपर वाला होगा ओ ऑफ एच वो जल्दी ज़ीरो जा रहा होगा एज कम्पेयर टू एच ऑफ स्क्वेयर। ये है ना, O of h over h, this term will tend towards 0. सर समझ लिमिट आ जब रहा है एच कि जीरो पुट कर सर लिमिट जब एच जीरो पुट करेगा तो ऑब्वियसली वो जीरो टेंड करेगा बाय डेफिनेशन, कौन, इसलिए ये पूरी टर्म ओ एफ हाँ ऑफ वो एच आपके पास सही है, O of h एच तो जीरो लिमिट पूरे करेगा तो सर फिर वो जीरो की तरफ टेंड करेगा तो ऑब्वियसली वो टर्म जीरो हो गई। हाँ नीचे वाले का झगड़ा है ना, मसला ये है कि नीचे वाला भी तो 0 को टेंड कर रहा है और ऊपर वाला भी 0 को टेंड लेकिन कर सर रहा है। ऊपर वाला फास्टर टुवर्ड्स हाँ जीरो टेंड करेगा तो हाँ ऑब्वियसली वो पूरी टर्म जीरो के इक्वल आ जाएगी, तो वही प्रॉपर्टी उसके हाँ, पे वो होगी। यही हम कहना चाह रहे हैं ना कि ऊपर वाला भी कर रहा है नीचे वाला भी कर रहा है, मगर ऊपर वाला ज़्यादा फास्ट कर रहा है, ठीक है। देखिए ना, ऊपर वाला भी तो आपका कोई फंक्शन ही था ना, फंक्शन ऑफ h ओवर h था, जी सर। ठीक है ना। सो कुछ भी हो सकता है, बिग ओ ऑफ एच में तो कोई भी फंक्शन आ सकता है जो टेंड टूवर्ड्स जीरो कर रहा हो, एंड वी नो दैट इट इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो फास्टर इन कंपैरिजन टू एच। ओ एफ एच उसी वक्त होगा ना, ओ एफ एच जब वो फंक्शन ऑफ एच ओवर एच टेंड टूवर्ड्स जीरो कर रहा है, इसका मतलब फंक्शन ऑफ एच से ज़्यादा तेज टेंड कर रहा है, और अदर वर्ड्स यू कैन से ओ ऑफ एच इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो फास्टर एज कंपेयर टू एच, दैट इज व्हाई दिस विल टेंड टूवर्ड्स जीरो, ठीक है। ये छोटा सा फैक्टर है, जी सर। देखना पड़ता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जा रहे हैं, अगर दोनों जा रहे हैं तो फिर आपको ख्याल करना पड़ेगा कि ऊपर वाला ज़्यादा तेज जा रहा है। सो ऑल इट वी गेट दिस थिंग, so I can bring it here, this becomes like this, I take log on both the sides, this becomes log of this, so I take the integration on both the sides, so this becomes a constant time t plus c constant, and derivative of log is equal to 1 over x times x derivative, so x derivative over x integration will give us log of gt. All right, now let us try to find this constant of this integration, and integration constant. How can I find? I say what happens at g0, so at g0 this will be e minus u n0, and you know that when n of t, or when the count is 0, when t is 0, you're just starting count, n t or n0 is always 0, e minus u 0 becomes 1, and e of 1 becomes 1. All right, e of 1 becomes 1, so g of 0 becomes 1, so at t is equal to 0, this becomes g of 0, so g of 0 is 1, but log of 1 is 0, and t is 0, this is also 0, so c comes out to be 0, so c is 0. So we have found c0, gt is this, so I take the inverse log on both sides. Let us say this log is log natural, so g of t will come out to be e of lambda e minus u minus 1t. This is my g of t, and g of t was actually the Laplace of my counting process, hence the Laplace of my counting process is gt, and it comes out to be this thing. All right, now if I say that x is a random variable with the mean of lambda t, then what is its Laplace transform? We find the Laplace transform of a Poisson random variable with mean lambda t. Okay? So we know the Poisson's the formula for Laplace transform e minus ux, where x is the random variable. So this will be e minus ui, and this is a Poisson random variable with mean t. अब क्या हुआ, e minus lambda, e minus lambda t आ गया, हर जगह lambda t आ जाएगा lambda की जगह,
लैम्डा टी फैक्टोरियल आ गया, लैम्डा टी पावर आई आ गया, नीचे आई फैक्टोरियल आ गया. दिस इज द PMF ऑफ माई रैंडम वेरिएबल विद मीन ऑफ लैम्डा टी. जहाँ जहाँ लैम्डा था वहाँ लैम्डा टी आ गया, और ये आपकी फंक्शन की वैल्यू है, ये उसका PDF है. तो दिस विल गिव यू द मीन ऑफ योर फंक्शन. यहाँ पर वही हमेशा की तरह होगा कि टेलर सीरीज ई माइनस लैम्डा टी आपकी बाहर आ जाएगी. इनसाइड आपके पास लैम्डा टी और यू भी इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा. ई लैम्डा टी ई माइनस यू आई. अब देखिए वही बन गया, I from 0 to infinity, this becomes a Taylor series. This will come in the power of E of x. This will x. This will come as E of x. This will become E minus lambda t E minus u. Here you can take E lambda t common. This becomes E minus u minus 1. Now compare this form with this form. Are these forms same? जी सर, same. This means that the Poisson's process, if you take the number of events in any interval t of a Poisson's process, the number of events, they become a Poisson's random variable with mean of lambda t. सबको समझ आ गया? सर इसमें वो अब कंपेयर कर रहे हैं ना लैप्लास ट्रांसफॉर्म को और ऊपर वाला जो रिजल्ट आया उसको. हाँ, आपने लैप्लास दोनों लिया, के रिजल्ट सेम आ रहे हैं तो हाँ, तो फिर ऑब्वियसली इसका मतलब वो भी Poisson's random variable है. पॉइजन प्रोसेस था, रैंडम वेरिएबल. हाँ, मतलब पॉइजन प्रोसेस तो था ही, और जो काउंट था किसी भी नंबर ऑफ इवेंट्स का किसी भी टाइम टेबल में, वो एक पॉइजन रैंडम वेरिएबल था मीन लैम्डा टी के साथ. और ये डिस्ट्रीब्यूशन उसकी है, यहाँ से लेके ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन. देख लें आम में सिर्फ ई माइनस लैम्डा लैम्डा आई होता है, मगर यहाँ पे ई माइनस लैम्डा टी हो गया, ये लैम्डा टी हो गया, ये फर्क हो गया. जी सर, ऑब्वियसली मीन पुट किया ना उसने उसका लैम्डा. हाँ, यही बताना था आपको. So to show that in any interval is also a Poisson with mean lambda t, fix x and let nst is equal to nst plus this. तो अभी तो हमने जो ये दिखाया था, मतलब वो प्रूफ में कह रहे हैं ना किसी भी इंटरवल में. तो पहले तो हमने बिल्कुल ही सिंपल सा शो किया अभी कि जी हम टी का ले रहे हैं और एच का हमारा इंटरवल है. तो कहते आप इसको जनरलाइज कर लें, आप मतलब कि टी का इंटरवल किसी भी एस पे आप स्टार्ट कर लें. यहाँ अगर आप देखें ना, सारा जो हम कर रहे हैं बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमने बेसिकली लिया एन ऑफ टी, सर ये तो उसने सिंपल निकाला है ना जी, सिर्फ टी पे निकाला. नीचे वाले वो अब वो उसको कह रहे हैं कि एस इंटरवल से स्टार्ट, और जिस इंटरवल से स्टार्ट हो रहा है उसके साथ एस प्लस टी. अब वो कह रहे हैं किसी कोई भी इंटरवल ले लें. भाई वैसे देखा जाए ऊपर भी हमने ठीक है इतना स्पेसिफाई तो नहीं किया था, मगर हमने किया तो वही ना टी प्लस एच किया था. हमने कभी इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें और टी को आप कर दें, टी में हमने इसके लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हमने एच को ऐड किया था. तो फिर इस तरह से हमने कहा कि जी उसका हम लोग करते कराते घुमा फिर आके उसका हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म बना लिया था. यहाँ पे एच ज़ाहिर है, यहाँ पे एक ये हमारा शर्त थी कि एच हैज़ टू बी अ स्मॉल नंबर, इट हैज़ टू टेंड टुवर्ड्स 0. जैसे हमने इधर भी सारे एग्जाम्स लगाए हुए हैं, तो वहाँ पे आप देखें कि सारा कुछ ओ एफ एच है, तो एच आपका एक छोटा छोटा इंटरवल है, ठीक है ना. मगर ज़ाहिर है हमें तो अब बड़ों में बात करनी है. सो हमने जब छोटा सा एच का भी इंटरवल लिया था, तो उस केस से हमने दिखाया था कि हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है. और फिर जब हमने वैसे उसको चेक किया उसके स्टेटमेंट के लिहाज से, फिर ये वही बन गई. इसका मतलब किसी भी स्मॉल एच के लिए हमारा ये पॉइसॉन्स है, ठीक है ना. तो अगर आप बड़ा ले लेंगे, यहाँ पे आपने बड़ा ले लिया, उसको टी एक बड़ा ले लिया आपने, तो जाहिर है ये फिर भी पॉइसॉन्स होगा.
और मीन उसका वही इंटरवल बनेगा जो आपका लैम्डा टी है। और इस तरह से आप सारे एक्सियम्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं और इस तरह से आपका जो काउंटिंग प्रोसेस एक पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन है उसका लैम्डा टी। सो जो आपका एन टी है, या आप कह लें नंबर ऑफ इवेंट्स इन टी इंटरवल, या आप कह लें एन टी प्लस एन माइनस एस, वेयर एन टी कुड बी एनी वैल्यू। ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है। ये एक्चुअली कैसे आई? ये एक्चुअली आई पॉइसन्स की अप्रॉक्सीमेशन टू द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब आप कहेंगे जी ये कैसे हो गया? ये इस तरह से हो गया कि आप तसव्वुर कर लें कि आपने जो आपका इंटरवल था 0 से लेकर टी तक, उसको आपने के पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आपका इंटरवल है 0 से लेकर टी तक, आपने पहला बनाया टी ओवर के एक बड़ा नंबर है तो ये पहला इंटरवल, फिर उस पहले इंटरवल को सेकंड मल्टीपल से सेकंड इंटरवल फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड तक आप के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टी इज इक्वल टू टी हो जाएगा। एक बड़े इंटरवल को आपने छोटे छोटे टी ओवर के इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। तो जाहिर है सबका साइज भी के हो गया, के इक्वल पार्ट्स हो गया, और के का आपने बहुत लार्ज रखा। अगर आप के को इन्फिनिटी की तरफ ले जाएं तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 2 or more events in any of k sub intervals goes to 0। ये तो हमने पहले ही देख चुके हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ हैविंग 2 or more intervals वो तो वैसे ही बिग ओ ऑफ एच है, और ऊपर से अगर आप इसको पर्सन 2 रखें या 2 से ग्रेटर, उसने तो जाना ही 0 की तरफ है, तो आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है ना, उस एक्सियम के मुताबिक। तो लिहाजा हम बिल्कुल कहने के हैं कि हम इट गोज टूवर्ड्स 0, as intervals become small it goes towards 0। और ये कि नंबर ऑफ इवेंट्स जो हैं वो 1 को जा रहे हैं, वो बराबर होगा आपका नंबर ऑफ सब इंटरवल्स इन विच एन इवेंट अकर्स। बिकॉज आपने देखा था प्रोबेबिलिटी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग प्रोबेबिलिटी 1 को जाएगी इफ एन टी रिप्रेजेंट्स द number of events equal the number of sub intervals in which an event occurs. Alright, I will take a break now because you know there's only 1 minute left, so I will mark your attendance. हाँ जी, सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट लग रहे हैं मुझे तो, है ना? चलो खैर लगा लेते हैं। 27/5 रोल नंबर 3, रोल नंबर 3 Present, sir. रोल नंबर 4 आप तो वैसे ही प्रेजेंट है। Yes, sir. रोल नंबर 6, रोल नंबर 6, रोल नंबर 9, रोल नंबर 9, all right, roll number 10, roll number 10 is present, all right, thank you. Roll number 18, ओए प्रेजेंट सर। अच्छा मैंने कहा आप भी छोड़ गए। अच्छा चलो ठीक है। रोल नंबर 24, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। ठीक है, 18 भी हो गया, 24 भी हो गया, ऑल राइट गुड। नाउ रोल नंबर यू नो आई थिंक इज 27, Present, sir. रोल नंबर 28, Yes, sir. आप लास्ट टाइम एब्सेंट नहीं थे? Yes, sir. Absent, sir. अच्छा, रोल नंबर 30, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 34, प्रेजेंट सर। The 9 be present. 9 प्रेजेंट है, अच्छा अच्छा। हाँ जी, रोल नंबर 9, जी सर present में हैंडफ्री का माइक खराब है। अच्छा चलो ठीक है। बस आई थिंक रोल नंबर 6 रह गया, बाकी सारे प्रेजेंट हैं।
All right, thank you very much. I will mark your attendance. I will end the lecture. I will try to share the course outline with all the details so that you can see it. All right, thank you. Allah.